Welcome back students again in my YouTube channel. Hope you are excited about the second part of this chapter. We are studying the chapter concept of cost. In first part we studied about the fixed cost and variable cost and what is the cost, implicit, explicit cost. In this part we will further study about this relation between all these costs. Let's start today's study. First of all, again it is my humble request, kindly subscribe my YouTube channel, share it with your friends and relative, like it and press the bell button there for further notification. Let's start. Behavior of the fixed cost, variable cost and total cost, and the shape of total cost curve as the aggregate of TFC and TVC. ये हम यहाँ स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे there is a schedule which shows the relation between all the three costs. Yesterday I told you about that total cost is the sum total of total fixed cost and total variable cost. So as the output increases in this schedule 0 to 6 unit, as the producer produce 0 to 6 unit, then what is the behavior of fixed cost, variable cost and total cost? So fixed cost is fixed. As production is 0, then fixed cost is 10, and 0 to 6 unit the fixed cost remain fixed. It is 10, 10, 10 each and every time, because fixed cost will not change when the production increases or decreases. Second, variable cost. Variable cost is 0 when the production is 0. As production increases, then first of all variable cost increases by diminishing rate, but when fixed factor are fully utilized, fully occupied, then variable cost start increasing by increasing rate. So you are seeing here, yesterday I told you about the curve, what is the shape and behavior of variable cost. Then what is total cost? Total cost is the sum total of both these costs, fixed cost and variable cost. First of all, total cost at the 0 production unit 10, because it is just equal to total fixed cost. Then it is the sum total of both the cost. आप इन दोनों को ऐड करते जाएंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा. तो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर क्या होगा? इट इज जस्ट लाइक वेरिएबल कॉस्ट, बट ये वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर चलेगा, उनमें 10 का डिफरेंस होगा, बिकॉज टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का गैप आएगा हमेशा 10. अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 10 है तो ये 20 है, अगर ये 18 है तो वो 28 है, हमेशा 10 का गैप रहेगा, जो क्योंकि हमारे पास यहाँ फिक्स कॉस्ट 10 के इक्वल था. So it is simple to understand by the schedule. Now you can read it by pausing your screen. The description of the schedule. Now come to the diagrammatic presentation. All the cost, you are seeing a diagram on your screen now. It is figure 3. Then fixed cost, total fixed cost remain constant. तो कर्व इसका आएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, आप यहाँ देख पा रहे हैं. सेकंड टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. ये स्टार्टिंग में आपके पास क्या होगा, इन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना इसका स्टार्ट हो जाएगा. बट टोटल कॉस्ट जो है, इसका जो शेप रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, बट यहाँ 10 का गैप रहेगा. टोटल कॉस्ट वेरिएबल जो कॉस्ट है उससे ऊपर चलेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है. एट द बिगिनिंग टोटल कॉस्ट जो है स्टार्ट इंक्रीजिंग बाय डिमिनिशिंग रेट, देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट. सो इट इज सिंपल. शेड्यूल और डायग्राम आपने पढ़ा. Here some point related to this diagram below the diagram. First point, TFC is constant at all the level of output पे constant रहता है. Second है TVC increases as output increases. जैसे output बढ़ता है तो हमारा total variable cost बढ़ने लगता है. Third point है TC is the parallel to TVC. वो TVC के parallel रहेगा. It shows that the difference between TC and TVC is equal to TFC. टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर रहेगा. सो इट इज वेरी इजी. ये जो पॉइंट है आप ये ध्यान रखेंगे, एंड इट इज द फॉर्मूला दैट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी. नेक्स्ट, TFC जो अपने पास डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ दिया हुआ है, यू कैन रीड इट बाय पॉजिंग योर स्क्रीन. नाउ कम टू द एवरेज कॉस्ट. व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट
How can we find the average cost? By implementing this formula. The formula is on your screen. When you divide the total cost by the unit, the production unit, then it will equal to average cost. मतलब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट के यूनिट से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा. लेट मी टेल यू अगेन, मैं वापस आपको शेड्यूल से बता देता हूं, जस्ट लाइक इट इज योर शेड्यूल. अब आप इसके साथ यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का एक कॉलम बना लेते हैं. TAVC, इसको मैं थोड़ा गलत लिख गया, तो ये आपके पास हो जाएगा AVC. तो ये कॉलम कैसे आएगा? आपको टोटल कॉस्ट को आउटपुट के यूनिट से डिवाइड लगाना है. ठीक, इन दोनों कॉलम को डिवाइड लगाना है. जस्ट लाइक लास्ट है 48, देन 48 इज डिवाइडेड बाय 6, देन 6 8 जा, तो आपके पास ये 8 आ जाएगा. यहाँ पे एक बीच में और कर लेते हैं 28 पे आपके पास 2 है. व्हेन वी डिवाइड 28 बाय 2 देन इट इज इक्वल टू 14. तो इस तरीके से आप टोटल एवरेज जो कॉस्ट है अपने पास वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस फॉर्मूला. सो नथिंग कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये वेरी इजी. ये इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं. AC एवरेज कॉस्ट है, TC टोटल कॉस्ट एंड Q क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है. इन द बॉक्स ग्रीन आपके पास यह बॉक्स नजर आ रहा है. एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट, जो कॉस्ट बोला जाता है इसको यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि ये पर यूनिट के कॉस्ट को आपको शो करेगा. नेक्स्ट आप इसी के शेड्यूल पे जा सकते हैं. एक बार एवरेज कॉस्ट का मैंने आपको ऊपर बता दिया. टोटल कॉस्ट इज गिवन एंड आउटपुट यूनिट इज गिवन, देन यू कैन इजीली फाइंड. फर्स्ट, when the output unit is 0, total cost is 10 divided by 0, it will equal to infinite. Then again आप जो निकालेंगे, each and every time you have to divide the total cost by the output unit, तो आपके पास ये एवरेज कॉस्ट आने लगेगा. नेक्स्ट अपने पास अगेन फिक्स कॉस्ट जो होता है एंड वेरिएबल जो है कंपोनेंट ऑफ AC. एवरेज कॉस्ट के रूप में अगर आप इसको देखते हैं तो AC जो आपके पास एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. जैसे आपके पास टोटल कॉस्ट सम टोटल आता था, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, तो अगर आप एवरेज के साथ जाएंगे, टोटल एवरेज कॉस्ट आप लेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के सम टोटल के बराबर ये हो जाएगा. AC डिनोट्स एवरेज कॉस्ट, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. जो एब्रीवेशंस हैं इन कॉस्ट के, इनमें आप कंफ्यूज ना हो, इनके नाम सहित आप याद रख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एब्रीवेशन. समटाइम द स्टूडेंट विल कंफ्यूज कि ये क्या था. नेक्स्ट आपके पास आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट हाउ कैन यू फाइंड? ये स्पेशल केस है बिकॉज जो फिक्स कॉस्ट होता है आपके पास फिक्स होता है. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू डिवाइड द टोटल फिक्स कॉस्ट बाय द इंक्रीजिंग आउटपुट यूनिट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 आप शेड्यूल में देख पा रहे हैं ऑन योर स्क्रीन. व्हेन यू डिवाइड 10 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 देन यू विल गेट द टोटल एवरेज. जो फिक्स कॉस्ट एवरेज है वो आपके पास आने लगेगा. बट दिस टाइम यू आर डिवाइडिंग द फिक्स नंबर बाय 1 2 3 4 5. तो यहाँ एक स्पेशल पैटर्न बनेगा. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होगा. एंड व्हाट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोल कर्व? रेक्टेंगुलर हाइपरबोल जो कर्व होता है, इट इज अ कर्व विच हैव कांस्टेंट स्लोप. उसका कांस्टेंट स्लोप होगा. या तो स्ट्रेट लाइन जो कर्व होता है उसका कांस्टेंट स्लोप आता है, बट अगर किसी कर्व शेप में जो कर्व होता है वहां भी आपका स्लोप कांस्टेंट रहता है, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोल. तो यहाँ फिक्स कॉस्ट ईच एंड एवरी टाइम 10 है और आपने उसको इंक्रीजिंग नंबर से डिवाइड लगाया तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होगा वो आपके स्क्रीन पे अब नजर आ रहा है. डायग्राम इस तरीके का होगा एंड इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोल कर्व. Why it is called rectangular hyperbole? Because it has constant slope each and every point. जो यहाँ डॉट में दिखाया गया है, हर डॉट पे आपके पास इसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन कर्व का होता है. Now you can read
जो नीचे पॉइंट दिए गए केयरफुली इसको पढ़ते हैं। AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोल इट शोज। फर्स्ट जो इसका पॉइंट आता है, AFC डिक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज। जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा तो AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये कर्व आपके पास नीचे की तरफ आता जाएगा। बट शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। सेकंड जो है AFC जो है आप कैलकुलेट AFC इंटू Q अगर मल्टीप्लाई करते हैं एट एनी लेवल ऑफ द आउटपुट इज द सेम, बिकॉज वो हमेशा सेम आंसर आपके आएगा। अगर आप वापस AFC और Q आउटपुट यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे देन ईच एंड एवरी टाइम यू विल गेट 10, क्योंकि टोटल को जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहता है, विच इज कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डायग्राम यू कैन रीड इट। फिगर 4 जो है AFC शो एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो मैंने आपको समझा दिया, यू कैन रीड इट बाय पॉजिंग योर स्क्रीन एनी टाइम। मैं आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है पढ़ देता हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। ये मैंने भी आपको बता दिया है, AFC कर्व हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोल का मतलब होता है कर्व विच हैव कांस्टेंट स्लोप एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इट। Now average variable cost, how you can find the average variable cost? Average जो variable cost होता है is equal to TVC upon Q. When you will divide the total variable cost by output unit, तो वो equal to हो जाएगा average variable cost के। अब इसका शेड्यूल आपके पास यहाँ आ जाता है, आउटपुट यूनिट 0 to अब 1 to 8 आपके पास है, बिकॉज जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो 0 आउटपुट यूनिट पे 0 होगा, तो हमने यहाँ उसको लिया नहीं है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, सेम पैटर्न है। इन द बिगनिंग इट विल इंक्रीजेज बाय डिमिनिशिंग रेट, और जब रिसोर्सेज फुली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे आप, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट यूनिट से डिवाइड लगाना पड़ेगा। एक दो एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ। लास्ट 62 है, व्हेन 62 इज डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास 7.7 आएगा। बिगनिंग में आप 10 को 1 से डिवाइड लगाएंगे, देन ये 10 के इक्वल आएगा। व्हेन 18 इज डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 9। So you can easily calculate the value of average variable cost by dividing total variable cost by output unit. अब आपको यहाँ देखना है what is the shape of average variable cost. स्टार्टिंग में 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3 हुआ, यहाँ तक ये variable cost कम होता है 6.3, और इसके बाद ये 6.6, 6.7 इंक्रीज होने लग जाता है। तो सेम पैटर्न से इसका कर्व आएगा। बिगनिंग में जो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है कम होगा, फिर एक पॉइंट के बाद ये बढ़ने लगेगा। देन व्हाट इज द शेप? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप आपके पास ये डायग्राम सामने स्क्रीन पे कैसे होगा। इन द बिगनिंग ये कम होगा, और एक पर्टिकुलर यूनिट पे जाने के बाद ये वापस बढ़ने लगेगा। देन इट इज यू शेप कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप आता है यू शेप कर्व आएगा। जैसे आपने कैलकुलेट किया, इट इज ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास बिगनिंग में क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। दैट इज वाई द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप। Let's read the some points given here below the diagram. AVC curve is the U shape. This is an accordance with the law of variable proportion. In last chapter you studied about the law of variable proportion. The law of variable proportion set in the short period में सेट होता है, एंड ड्यू टू द वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा। ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, ये 3 स्टेज दिखाई देते थे। So it is the description of this diagram. You can read it anytime by pausing your screen. Third point, AC as the summation of AFC and AVC. अगर आप वर्टिकली समेशन इनका देखेंगे तो ये भी एक स्टडी का पॉइंट होता है। ईच एंड एवरी टाइम जो एवरेज वेरिएबल, जो एवरेज जो कॉस्ट है आपके पास, इट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। हियर इट इज द ऑल द डायग्राम्स ऑफ द कॉस्ट। आपके पास एवरेज कॉस्ट का डायग्राम है, जो कर्व है ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप देख पा रहे हैं, एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट देख पा रहे हैं। तो 3 पॉइंट पे हमने इसको कैलकुलेट करना है, L, L1, L2। अगर आप L पॉइंट पे चलते हैं देन टोटल जो कॉस्ट है आपके पास, एवरेज कॉस्ट टोटल है, इज इक्वल टू ALS।
इट इज इक्वल टू एल एस के इक्वल ये आएगा पूरा आपके पास. इट इज द समेशन ऑफ एल टी एंड एल के. ये एल टी और एल के का समेशन होगा, तो वी कैन से एल एस इज इक्वल टू एल टी प्लस एल के, दोनों कॉस्ट के सम के बराबर आएगा. सेकंड जो आपके पास है L1, यहां पे आपके पास एवरेज जो कॉस्ट है टोटल, इट इज इक्वल टू L1 S1 होगा. देन वी कैन से इट इज द सम टोटल ऑफ L1 T1 प्लस L1 T1. दो बार L1 T1 आएगा बिकॉज एट दिस पॉइंट both the curve AFC and AVC intersect each other. The value of AVC and AFC is equal to each other. तो यहां पे आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है इज इक्वल टू L1 T1 प्लस L1 T1 एंड 2 L1 T1 आप इसको कर सकते हैं. यहाँ पे डबल हो जाएगा. थर्ड L2 पे जब आप इसको कैलकुलेट करने जाते हैं तो आपके पास एवरेज कॉस्ट का वैल्यू आता है L2 S2 विच इज इक्वल टू L2 T2 प्लस L2 K1 के बराबर ये आएगा. इट इज नोन एज द वर्टिकल समेशन ऑफ ऑल दिस कॉस्ट. बस आपको फॉर्मूला जो याद रखना है ना, वो ये याद रखना है कि जो AC है इज इक्वल टू AFC प्लस ABC. इसके अकॉर्डिंग आप वर्टिकल सबमेशन निकाल सकते हैं कि एवरेज जो कॉस्ट होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ये बराबर आएगा. देन इट इज द कैलकुलेशन. व्हाट इज वर्टिकल सबमेशन? आप एक बार यहां देखिए बुकिश लैंग्वेज में इट इज अ वर्टिकल एडिंग अप टू द वैल्यूज ऑफ AFC, ABC एंड AC. तीनों के वैल्यू को जब आप वर्टिकली ऐड करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में तो ये वर्टिकल सबमेशन कहलाता है. जो फर्स्ट है इन फिगर 6 में 10 व्हेन आउटपुट इज OL. जब आउटपुट OL के बराबर होता है, आप ऊपर देख रहे हैं OL स्टार्टिंग में ओरिजन से L फिर L1 L2 तीन स्टेजेस हैं. तो AFC LT के बराबर है, AFC LK के बराबर आपके पास यहाँ आता है और आउटपुट OL होता है. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलेंगे AC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC. तो LT इज इक्वल टू LK प्लस LS. ये मैंने भी आपको डायग्राम में बताया था. सेकेंड जो स्टेज आपके पास आता है यहाँ पे आपके पास AC L1 T1 प्लस L1 T1 जो आपके पास आएगा दो बार L1 S1 के ये बराबर होगा. आप डायग्राम से इसको मैच कर सकते हैं एनी टाइम. और थर्ड जो आपके पास आता है ये डायग्राम OL2 यूनिट पे जब आप जाते हैं तो AC इज इक्वल टू आपके पास L2 K1 प्लस L2 T2 के बराबर आता है. ठीक, अभी दोबारा डायग्राम आपको दिखा देते हैं एक बार. अगेन आप इसको बारीकी से देखेंगे तो आपके पास इजीली समझ आएगा. ये आपके पास OL यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का है. ठीक, डायग्राम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. यस, नाउ इट इज ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल LS के बराबर आपका AC है विच इज इक्वल टू LT प्लस LK के बराबर आएगा. सेकंड में आपके पास L1 S1 टोटल कॉस्ट होगा जो कि दो बार L1 T1 दो बार आएगा बिकॉज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बराबर होता है. थर्ड आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है L2 S2 के बराबर होता है और इसका सम टोटल आएगा L2 T2 प्लस L2 K1 के बराबर आएगा. सो इट इज द वर्टिकल सबमेशन ऑफ ऑल दिस कॉस्ट. नेक्स्ट शॉर्ट रन जो है आपके पास फोकस जोन में आप देखें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो कर्व है इज यू शेप्ड कर्व होगा एवरेज कॉस्ट का, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा. ये मैंने आपको समझा दिया. लेट मी रीड इट अगेन. ओइंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन AC कर्व टेंड टू बी यू शेप. AC टेंड टू फॉल व्हेन देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर. फर्स्ट स्टेज में जब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, प्रोड्यूसर को इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं तो एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होता है उस टाइम. और वो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलने का रीजन भी यही होता है. इट नीड टू बी राइज व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. और जो सेकंड स्टेज जिसमें आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते हैं वहां पे आपका वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कम होने लगता है. एंड इट टेंड टू स्टेबल, ये एक जगह जाके स्टेबल हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट व्हेन देयर आर नाइदर इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न. उस स्टेज पे कांस्टेंट होगा. इट इज दीज थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन विच इम्पार्ट यू शेप टू द AC कर्व. और जो तीन स्टेजेस आपको प्रोडक्शन में मिलती है इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग नेगेटिव, उस कारण AC जो कर्व है उसका शेप यू शेप बनता है. नाउ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन फर्स्ट. As output increases AC tend to closer to ABC. AC जो है AVC के क्लोजर क्यों आता है? We know that AC जो है सम टोटल ऑफ AFC प्लस AVC होता है. As output increases AFC must
कंटिन्यूसली फॉल, एएफसी तो कंटिन्यूसली फॉल होगा क्योंकि एएफसी का वैल्यू फिक्स होता है और जब आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर से डिवाइड लगाते हैं तो एएफसी इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं होता, ये कंटिन्यूसली कम होगा बिकॉज टीएफसी इज कांस्टेंट। कॉन्सिक्वेंटली द कंपोनेंट ऑफ एएफसी इन एसी, क्योंकि जो टोटल एवरेज कॉस्ट है उसमें एएफसी का कंपोनेंट होगा जरूर। दिस ब्रिंग एसी क्लोजर टू एवीसी, क्योंकि एएफसी तो इंक्रीज होता नहीं और कंटिन्यूसली कम होगा और एसी में एएफसी का कंपोनेंट होता है। व्हाई? बिकॉज एसी किसका सब टोटल होता है, एसी इज इक्वल टू अभी अभी बताया था टीएफसी, सॉरी एएफसी प्लस एएफसी एवीसी, तो इन दोनों का सम टोटल है तो एवरेज कॉस्ट में कंपोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट होता है, दैट इज वाई ये क्लोजर आता जाएगा एवीसी के। सेकंड क्वेश्चन है कैन एसी एंड एवीसी एवर बी इक्वल फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट, क्या एसी और एवीसी बराबर होंगे किसी आउटपुट लेवल पे? नो, दिस इज बिकॉज एसी इज द वर्टिकल सबमेशन ऑफ एवीसी एंड एएफसी। एसी तो वर्टिकल सबमेशन है भी पड़ा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का, दैट इज व्हाई एसी जो है नेवर बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ये बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है मार्जिनल कॉस्ट। इट इज अ क्वाइट डिफरेंट जो स्टडी का पार्ट है। जो मार्जिनल कॉस्ट आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म जो एब्रीविएशन से एमसी से रिप्रेजेंट करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट इट इज अ एडिशनल कॉस्ट व्हेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, दो वन मोर यूनिट पे जो भी कॉस्ट आता है इट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये एडिशनल कॉस्ट हो गया आउटपुट का। अकॉर्डिंग टू फर्गुनस मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशनल ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे आउटपुट में एक यूनिट ऐड होता है, आपका आउटपुट लेवल एक यूनिट से बढ़ता है तो जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। तो अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आप किसी भी यूनिट के टोटल कॉस्ट में से प्रीवियस यूनिट का टोटल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट। You can calculate MC by another formula, MC is equal to delta TC upon delta Q। मतलब डेल्टा मतलब चेंज होता है आपके पास, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट यूनिट। ये आपके कैलकुलेशन के लिए दो फॉर्मूले मार्जिनल कॉस्ट के। इनका मीनिंग क्या है, MCN मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth आउटपुट, n मतलब नंबर ऑफ आउटपुट। जैसे आपने n का वैल्यू रखा 4, यहां मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए कर देता हूं। जैसे आपने n का वैल्यू रखा 4 तो आपके पास क्या हो जाएगा, MC4 इज इक्वल टू TC4 माइनस TCN माइनस 1 है तो ये TC3 हो जाएगा। n में से 1 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 3, तो टोटल कॉस्ट 4 यूनिट में से आप टोटल कॉस्ट थर्ड यूनिट का आपको यहाँ माइनस करना है इन ऑर्डर टू गेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फोर्थ यूनिट निकालने के लिए। सो इट इज सिंपल। आप भी प्रैक्टिस के लिए n का वैल्यू अलग अलग लेके एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन एंड बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। हियर इट इज अ शेड्यूल व्हिच शोज टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को ये बताता है। 3 कॉलम आपके पास है, चौथा जो कॉलम है मार्जिनल कॉस्ट का है। आउटपुट यूनिट 0 to 8, टोटल फिक्स कॉस्ट 10 10 10, क्योंकि ये फिक्स रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट का पैटर्न है, इन द बिगनिंग वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर वो इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर से बढ़ने लगेगा। और टोटल कॉस्ट कॉलम 2 + 3 का सम होगा। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जैसे आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट आता है। अब मार्जिनल कॉस्ट है, आपको कैसे निकालना है, ये सब्ट्रैक्ट आप करते जाएं। कैसे सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डैश आएगा क्योंकि 10 यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, फिर 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आ जाएगा, 28 में से 20 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 34 में से 28 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 38 में से 34 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इस तरीके से लास्ट 72 में से 56 माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 16। तो इस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इट इज द टाइम टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। आप शेड्यूल में देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट पहले 10 8 6 4 4, यहां तक मार्जिनल कॉस्ट कम होता है फिर ये बढ़ने लगता है। तो इट इज क्लियर मार्जिनल कॉस्ट का जो शेप आएगा वो भी यू शेप कर्व आपके पास आने वाला है। ऐसा कोई भी कर्व जो बिगनिंग में कम होता है फिर बाद में बढ़ने लगता है तो ये यू शेप कर्व बनाता हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है ये भी यू शेप आपके पास बनेगा।
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे आते हैं. इट इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एमसी. जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, ये यू शेप कर्व बनेगा बिकॉज एमसी शुरू में कम होता है और फिर ये बढ़ने लगता है. सो ये यू शेप कर्व आपके पास आएगा. यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं. नेक्स्ट आपके पास इलिस्ट्रेशन, जो फिगर का जो डिस्क्रिप्शन है, यू कैन रीड इट बाय पॉजिंग योर स्क्रीन एनी टाइम. MC is variable cost. It is important point. Why MC is only variable cost? Because MC जो सिग्मा MC होता है, it is equal to total variable cost के बराबर आएगा. Because इसमें जो फिक्स कॉस्ट होता है उसका कंपोनेंट कहाँ रहेगा, वो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट रहेगा. सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, इट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, सिग्मा MC इज इक्वल टू TVC. क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिक्स कॉस्ट का जो कंपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. 10 - 10 वो जीरो आएगा हमेशा. जो डिफरेंस आता है मार्जिनल कॉस्ट का, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द टोटल कॉस्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट, तो वो 10 में से 10 फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट वहां कट हो जाता है और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो शो होता है इसमें. तो अगर आप सिग्मा MC करते हैं ऊपर 1 to 8th यूनिट के लिए 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 16, तो ये 62 के इक्वल आता है. एक बार मैं शेड्यूल में वापस आपको ले चलता हूं. हियर इट इज. तो यहाँ आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट का सम टोटल है 8th यूनिट के लिए 62. तो जब आप इसको टोटल करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को टोटल यूनिट आप सम करेंगे इन सबको, देन इट इज इक्वल टू 62 आएगा. बिकॉज 8th यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस माइनस हो जाता है यहाँ पे आते आते, क्योंकि आपने माइनस किया था यहाँ पे. तो ये टोटल सम 62 आएगा. आप इसको ऐड करके देख सकते हैं. अगेन कम टू द फॉर्मूला जो हम स्टडी कर रहे थे कि सिग्मा MC इज इक्वल टू TVC होगा. ये आपको याद रखना है. इट इज ऑलवेज, इट इज फैक्ट. ये फैक्ट है. नेक्स्ट आपके पास आता है एस्टिमेशन ऑफ TVC फ्रॉम MC. मार्जिनल कॉस्ट से जब आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से कैलकुलेट करते हैं TVC, तो आपके पास MC का कर्व यू शेप कर्व आता है. जो नीचे का शेडेड पार्ट है आपके पास, इट ऑलवेज डिनोट द TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ये डिनोट करेगा. आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. TVC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. ये जो शेडेड पार्ट का एरिया बताया गया TVC, इसी के इक्वल होगा हमेशा. Let me read the sum point given here below the diagram. At the level of OL, OL जो आउटपुट लेवल है डायग्राम में आप देख रहे हैं, एरिया ऑफ MC कर्व, MC कर्व के जो अंडर जो एरिया है जो इक्वल टू है OLS के. ये OLS के पॉइंट क्या है, OLS के. अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल टू TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आएगा. दैट इज वाई TVC इज इक्वल टू सिग्मा MC के वो इक्वल आता है. यहां आप देख पा रहे हैं TVC इज इक्वल टू एरिया ऑफ OLS के विच इज इक्वल टू सिग्मा MC. नाउ रिलेशन बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट, इनके बीच का जो रिलेशन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे. आई थिंक इट इज इनफ फॉर दिस पार्ट of this chapter, and in the third part we will cover whole the chapter. वो last part होगा. Hope you are enjoying. Thanks a lot watching me online. Kindly subscribe my YouTube channel. It is again my humble request to all of you. Thank you. Now we will see in the third part of this chapter. Okay, bye bye.